Education is incomplete without knowing our true self. And for knowing our true self, we have to be connected with life's value. So with these words, I would like to welcome you, ma'am. I am Dr. Supriya Srivastava, coordinator of Yogananda Center for Theology, Shulini University. And today, on behalf of Shulini University and in association of Yogda Satsang Mahavidyalaya, I welcome you again in our Science of Spirituality webinar series 2023. So today among us, our Chancellor, Sir, Professor P.K. Khosla, Honorable Chancellor, Shulini University, and patron of Yogananda Center for Theology. And above all, I would like to say that a senior disciple of world-renowned yogi Sri Paramhans Yogananda ji, Professor P.K. Khosla. I would like to welcome him. However, he is not virtually present here because of some meeting. And we would like to welcome our chairman, YCT, and ex-IAS officer, Sri Vivek Atre, who is also a disciple of Paramhans Yogananda ji. I welcome you, sir. And before proceeding the webinar, I would like to introduce our speaker, today's eminent speaker, Ms. Maninder Sachdev. She is an alumnus of Guru Nanak Dev University. She has served Central Government Department as a Class 1 officer. She has master's degree in economics and bachelor degree in education. She has profound served for 39 years in prime central government department, including CBI, UPSC, Ministry of Agriculture, Ministry of Culture and Delhi Vidyut Board. She has been a visiting faculty at CBI Academy, Ghaziabad. She has been an entrepreneur in the making and will soon be a front of business world showcasing product made by NGOs by skillfully utilizing their workforce and turning them into hubs of business area. So there is big introduction of our today's eminent speaker. However, I try to introduce her very briefly, and I would like to proceed our webinar with the topic Bhagavad Gita and ethical values. So I request you, ma'am, we are waiting to listen you. Now stage is yours. जय गुरु और सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। मेरा बहुत प्यार। मेरे बारे में सुप्रिया ने बहुत कुछ बताया और इंस्टीट्यूट के यूनिवर्सिटी के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, मैं सबको नमस्कार कहती हूँ। और सुप्रिया, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। तो अब लगभग 44-45 लोग जो पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। और शूलिनी यूनिवर्सिटी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे इस टॉपिक को उन्होंने चुना। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना, तो अब नई सवाल नहीं हो रहा है, ये जो ऑप्शन नहीं है। तो पहला जो आज का हमारा टॉपिक है ना, भगवत गीता एंड एथिकल वैल्यूज। सो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि आपको पता है एथिक्स क्या होता है? मैं इससे पहले कि आप लोगों के जवाब मांगू, मैं बताना चाहती हूँ कि एथिक्स जो शब्द आया है, ये ग्रीक वर्ड इथोस से आया है, जिसका मतलब होता है नीति शास्त्र या हमारा मानवीय व्यवहार, जो उचित और अनुचित होने की हमें बताता है, मीमांसा करता है, ये उसके बारे में बताता है। स्पेशली पब्लिक में, खुले में हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, वही एथिक्स होता है। और ये एक फिलॉसफी की ब्रांच है जो हमें बताती है
कि हमें हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बस सुप्रिया ने इसी बात को लेके एक बहुत अच्छा टॉपिक चुन लिया, भगवत गीता एंड एथिक्स और एथिकल वैल्यूज। तो जो प्रश्न उत्तर का तो शायद ये दौर नहीं रह रहा, या अभी नई चैट बॉक्स में दिखाई दे रहा है। तो मैं पहला जो आपके पास मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप सुबह उठें ये बात कहें, टुडे इज गोइंग टू बी रियली अ गुड डे। आज का दिन शुभ होने वाला है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को कि रोज डेली में 10 लाख व्यक्ति प्रतिदिन उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। 10 लाख, ये एक डाटा है और एक कंफर्म डाटा है। तो फिर जब 10 लाख में आज हम जीवित हैं, रात को में प्रभु जी ने हमें प्राण दिए, हमें श्वास दिए, तो सुबह उठ के जरूर कहिए, मैं ईश्वर की कृपा से, मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, मैं भगवत गीता की कृपा से मैं आज जीवित हूँ, मेरे पास श्वास है। सो हमेशा बोलिए, टुडे इज गोइंग टू बी अ रियली गुड डे। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीतने वाला है। राइट? तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बता चुकी हैं मैडम कि हमारा टॉपिक है भगवत गीता एंड एथिक्स ऑफ भगवत गीता। अब अगर मैं इसको कहूँ कि सुप्रिया ने इसको ट्रेनिंग के रूप में लिया है, नहीं, इसको आप ऐसे लीजिए कि हमारे जीवन का प्रशिक्षण चल रहा है। जीवन की जो हमारी गाड़ी है, एक ट्रेन है, हम उसमें चढ़ने के तभी काबिल होंगे यदि इस प्रकार की एथिकल ट्रेनिंग जो सुप्रिया ने ऑर्गेनाइज करी है, जो इस यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज करी है, हम उसका थोड़ा भी प्रशिक्षण पा लें तो अपने जीवन की गाड़ी ट्रेन के ऊपर अच्छे से सफर कर पाएंगे। और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो प्लीज मुझे थम्स अप भेजिए। कैन यू सेंड मी द थम्स अप? आई जस्ट वांट टू हैव 1 or 2 thumbs up. 1 or 2 thumbs up. Yes, I got it. Very good. I got 1 thumbs up and really I love that. अब सवाल उठता है कि हमें तो ये पता है कि जीवन नश्वर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो फिर हमें भगवत गीता से ये जानना है कि हमारी थॉट्स ही हमको हमको या तो सुधार देंगी या हमारा हमको हमको बिगाड़ देंगी। हमारी अपनी सोच ही, तो इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, there is nothing in this world that can trouble you more than your own thoughts. तो फिर क्यों ना अपने थॉट्स को अच्छा कर लें, क्यों ना भगवत गीता का सहारा ले लें। मुझे एक बात बताइए, क्या आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता नहीं देखी? बहुत अच्छी बात है। अगर हमने ये हमारा जो ये ग्रंथ है इसको हमने देखा है और इसके बारे में जाना हुआ है, इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है, एटलीस्ट देखा है, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं, अब सवाल उठता है कि इसके एथिक्स में पहले पहले क्या सिखाया गया है। सबसे पहली बात है, नो वन हु डज गुड वर्क विल एवर कम टू अ बैड एंड, आइदर हियर और इन द अदर वर्ल्ड। अच्छा काम किया है, यहाँ भी अच्छे, वहां भी अच्छे। तो मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहती हूँ, माय लवली 62 पार्टिसिपेंट्स। आई जस्ट अप्रिशिएट कि आपने समय निकाला है और आज आप हमारे साथ आए हैं। जो हमारा जो सबसे ये उदाहरण है, जो अच्छा काम इस जन्म में भी करते हैं, आगे भी अच्छा होता। तो पहला उदाहरण मैं देना चाहूंगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कोई और बताना चाहेगा? नहीं तो फिर मैं बताऊं, मदर टेरेसा। तीसरा, एनीबॉडी, कोई मुझे उत्तर देना चाहेंगे जिन्होंने अच्छे कर्म किए हों और हम उनका उदाहरण जीवंत दे सकें, दुनिया के सामने पेश कर सकें? कोई है उदाहरण मुझे देने लिए? कोई मुझे उत्तर देंगे? 2 मैंने बताए हैं, तीसरा एक और बता के हम आगे चलते हैं। कल्पना चावला, इन्होंने भी जो है अच्छे काम किए हैं। आगे भी इनके लिए जो है इन द अदर वर्ल्ड आल्सो भी हम इनके लिए यही कामना करते हैं कि ये हमेशा ही जो इनका है लाइफ, हमेशा यहाँ भी खुश और दूसरे जन्म में भी खुश, दूसरे स्थान में भी खुश। अब ये एक एथिक्स है जो हमें बताता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। स्पिरिचुअल ग्रोथ, इससे आप क्या समझते हैं? अगर मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करती हूँ तो क्या भजन या कुछ और? किसको कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ?
कोई मुझे बताना चाहेगा? मैं बताती हूँ। गीता की जो एथिक्स है वो मैं बताती हैं, हाउ टू हार्मोनाइज एन इंडिविजुअल डिजायर, इमोशंस, एम्बिशंस इन ऑर्डर टू लीड अ हार्मोनियस लाइफ। अगर हमारी डिजायर्स और इमोशंस कभी भी चैन से नहीं बैठ सकते, बेचैनी रहेगी हमेशा। मुझे आज मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक और बंगला होना चाहिए, मेरे पास 2 कार है, मेरे पास 4 होनी चाहिए। सो द गीता एक ऐसी हैंडबुक ऑफ एथिक्स है जो हमें बताती है कि रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच के साथ हमें जीना है। हमें जो है हमेशा डू गुड थिंग्स, डू द राइट थिंग्स इन लाइफ। हमें ये करके अपना जीवन को अच्छा बनाना है। अब किसने कहा होगा कि जी भगवत गीता एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, एक एपिक है। आप अरबिंदो जी को ले लीजिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लीजिए, हजले जी को ले लीजिए और महात्मा गांधी। इन्होंने तो इसको यहाँ तक कह दिया कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हर मनुष्य के पास होना चाहिए। जब हमारी 1947 की जब हमारी ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उन्होंने ये कॉपियां सबको बांटी थी। क्या आपको विश्वास हो रहा है? यस, बिल्कुल उन्होंने ये किया था और ये कहा था कि जो गीता है, इट इज कॉल्ड फॉर ह्यूमैनिटी एज ए होल, फॉर सरेंडर, टू सरेंडर माइंड, बॉडी एंड सोल, टू प्योरीफाई। अगर ये आपको ये सब दिला सकती है तो फिर क्या करें? हम सच्चे रास्ते पे चले, राइटनेस, टू डू द राइट थिंग्स इन आवर लाइफ। राइट थिंग्स इन आवर लाइफ का मतलब क्या हुआ कि हमें हमारा जो कंडक्ट है, जो हमारा फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइफ है, वो रिलीजन बेस को लेके भगवत गीता के जो एथिक्स है उसको अपना के हम उसको क्यों ना फाउंडेशन स्टोन बना लें। सिखिज्म यही कहता है, बुद्धिज्म यही कहता है, लेकिन 13 अध्याय भगवत गीता का हमें ये बताता है कि जिसमें 20 वैल्यूज बताई गई हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, these values are fundamentally necessary for a seeker to prepare for the mind for knowledge of the self। अब अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता तो बताइए आप दूसरों के बारे में क्या कर सकते हैं, उनके बारे में क्या जान सकते हैं? तो गीता हमें ये बता रही है, खुद को तो जानो पहले, सेल्फ का ज्ञान, अपने का ज्ञान, राइट? सो हमारा जो पहला एथिक्स हम निकाल के देते हैं वो कहता है, फर्स्ट, एवरीथिंग हैपन्स हियर फॉर ए रीजन। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगी जो आप सबसे छुपा नहीं है। कोरोना, कोरोना आया था, आपको पता है। सबने कहा कि एक इसका जी, एक कोई इसका इसका एक व्हाट यू से, कोई इसका जर्म्स होते हैं जो फैल जाते हैं, ये एक कंट्री से आए हैं, दूसरे कंट्री से आए। मैं तो इस विचार की हूँ कि इतना कुछ गलत होने लग गया था, रेप होने लग गए, चोरी चकारी, छीना झपटी और इतने कुछ गलत काम होने लगे थे। क्या आपको नहीं लगता सृष्टि हमें कुछ सिखाना चाह रही है? सृष्टि हमें कुछ सिग्नल दे रही है? बहुत कुछ लोगों ने कहा जी एक माइक्रोन था, जी ऐसा था, ये एक जीवाणु है उसकी वजह से हो रहा है। आप देखिए कोरोना आया, सब बंद, पिक पॉकेटिंग बंद, सड़कें खाली, और एक लेसन मिला, बस शांत हो जाओ। आपको हमेशा एवरीथिंग हियर इट हैपेंस फॉर अ रीजन। लोगों ने एक दूसरे के लिए मदद शुरू कर दी, कोई किसी की परवाह नहीं करता था, सड़क पे जाते हुए गिरा है तो निकल गए पास से। लेकिन आज जब कोरोना ने हमें सिखा दिया कैसे एक दूसरे को ऑक्सीजन देना है, कैसे एक दूसरे की घर बैठ के मदद करनी है, कैसे हमने ऑनलाइन पे क्लासेस सुप्रिया ने भी ली होंगी, ऐसे कई चीजें हमें सीखी कि कैसे हमें सृष्टि से युद्ध नहीं करना है। तो क्या करना है? हमें ये जानना है एक एथिक कि जो भी हो रहा है किसी कारण से हो रहा है। हमने अपने आप को सुधारा। सुप्रिया, क्या आप इस बात से सहमत हो कि हम इस कोरोना काल के बाद हम सुधरे हैं? क्या सहमत हो आप इससे सुप्रिया? Yes, ma'am. Yes, यस, yes, ma'am. Of हमने course, we have सीखा learned a lot कि of things. यस Yes. एक रीजन मिला, हमें एक रीजन मिला, और हमें सिखाने वाली सृष्टि ने बहुत कुछ छोटी सी बात में कह दिया, एवरीथिंग हियर हैपेंस फॉर रीजन। तो फिर क्या करें? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल, डू योर वर्क एंड फोकस।
और नॉट ऑन द रिजल्ट। केवल अपने काम में ध्यान दो। एवरीथिंग जब हमने कह ही दिया कि सारा ये जो है पहले से नियति है, तो फिर अपना काम ध्यान से करें, अपना काम मेहनत से करें। मैंने जब यूपीएससी का एग्जाम किया था तो मुझे भी कहा गया था महिला कैसे करेगी, बहुत मुश्किल है। तो मेरे को भी बहुत लोगों ने कहा था मैडम आप छोड़ दो, बहुत मुश्किल है, आपके साथ तो सारे यंग यंग बॉयज एग्जाम दे रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे बड़े बड़े, और एक 10th का बोर्ड, एक 12th का बोर्ड, और हमारा ऊपर से यूपीएससी एग्जाम, और कमरे में बंद है और रोज ब्रेड खा रहे हैं। और लेकिन ऑफिस में किसी ने कह दिया मैडम बहुत सोचिए, इतना आसान है। हमने कहा ठीक है भैया, लेकिन 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 क्या हुआ, गीता की ये बात याद आई, concentrate on your goal, do your work and focus not on the result। सुप्रिया, जब हमारा रिजल्ट आया तो हमें, जब हमारे किसी मित्र ने कहा मैडम एम्प्लॉयमेंट न्यूज चेक कर ली, आपका नाम नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप अगली बार कर लेना। मैंने बोला तुमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज चेक करी? हाँ हाँ, सारी ऊपर से नीचे चेक कर ली। तो मैंने कहा आपने टॉप 10 देखा? तो जब उसने कहा नहीं मैडम, मुझे तो उम्मीद थी आपका नाम नीचे होगा, तो मैं तो नीचे देखता रहा। तो मैंने कहा आप टॉप 10 में देखिए, और आज 20 साल हो गए इस बात को। वो सज्जन कहते हैं कि मैडम हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है ये जान के कि आपने फोकस करके गोल को देखा और रिजल्ट की परवाह नहीं की, और आप इस वक्त आपने क्वालिफाई किया है यूपीएससी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी तारीफ करनी है, ये आप लोगों के लिए एक लेसन है। बहुत कुछ रास्ते में रुकावटें आएंगी, आप नहीं कर पाओगे, कैसे होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है और एक चट्टान बन के किस पे करना है, फोकस ऑन योर वर्क नॉट ऑन द रिजल्ट। ये हमारी अपनी फीलिंग्स हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं। तो सुप्रिया, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप दोनों हाथ, सारे पार्टिसिपेंट ऐसे करिए, ऐसे करिए। एक हाथ में मैं पंख रख देती हूँ और एक हाथ में मैं एनसाइक्लोपीडिया रखती हूँ। आप अपने आंखें बंद करिए, सामने हाथ करिए। सुप्रिया, आप देखिए, आप एक हाथ में आंखें बंद करके इसमें सोचिए पंख हैं, और इस हाथ में मैंने एनसाइक्लोपीडिया रखी है। आप आंखें बंद करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि ये हाथ हल्का है, ये भारा है, जबकि मैंने रखी नहीं है। ये हमारी फीलिंग है। थोड़ी देर के बाद मैं थोड़े पंख इस हाथ में फिर डाल देती हूँ और एक एनसाइक्लोपीडिया इस हाथ में दोबारा डालती हूँ और आंखें बंद के महसूस करने लगती हूँ। तो मुझे लगता है हो, ये तो वजन बढ़ गया, और एनसाइक्लोपीडिया आ गई और पंख आ गए। अरे, ये हमारी सोच है, जबकि मैंने एनसाइक्लोपीडिया रखी नहीं है। ये हमारी सोच है जो हमारे को इस तरह के बोझ में डाल सकती है या हल्केपन में डाल सकती है। तो हमारी थॉट्स हैं। तो हमें क्या तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, क्या क्या फोकस होना चाहिए? ओनली ऑन योर वर्क नॉट ऑन द रिजल्ट, राइट? क्योंकि मैं कहती हूँ, मैं और आप इंडिविजुअली, आप करिश्मा है कुदरत का, ईश्वर का एक मास्टरपीस है। व्हाई टू वेस्ट? हम अपने आप एक मास्टरपीस है, ये लेके चलिए। आप ये मत कहिए कि मैं कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी। मुझे भी बहुत लोगों ने ये एक भय दिखाया था, बड़ा मुश्किल है यूपीएससी एग्जाम। अगर मैं उस वक्त भय करती कि मेरे हाथ में तो 2 एनसाइक्लोपीडिया पड़ी, बहुत बोझ हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड यू नो, हस्बैंड ने आके मुझसे पूछा कैसे हुए एग्जाम्स? तो मैंने कहा जी, एक क्वेश्चन 25 नंबर का है, पर मेरे 26 नंबर आएंगे क्वेश्चन में, एक में से 25 में से 26 अंक आएंगे। एंड माय हस्बैंड स्टार्टेड लाफिंग। इसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस। मुझे अपने पे विश्वास था, मैंने अपनी मेहनत पे विश्वास किया। अब आता है, आप ये कहें कि जो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं सिर्फ सुप्रिया की दोस्ती के कारण हूँ, या शुलिनी यूनिवर्सिटी की एक इम्पोर्टेंट, एक यूनिवर्सिटी प्रेस्टिजियस के कारण हूँ? नहीं, मुझे भी बैटल्स बहुत लड़ने पड़े हैं। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ बैटल्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत मुश्किलें आएंगी, कभी पैसे की कमी, कभी घर में अनाज की कमी, कभी घर में मृत्यु, कभी कुछ अड़चने आएंगी, बट नेवर शक इन फियर, फाइट टू द लास्ट, स्टैंड योर ग्राउंड। और आप हमेशा अटल चट्टान की तरह खड़े रहिए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए, युद्ध करिए। क्योंकि मैं कहती हूँ, आई ऑलवेज सी माई सेल्फ एज लाइक इक्वल टू एवरीवन। सब हमारे जैसे हैं,
अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। 2 बच्चे बर्थडे पे गए थे, परसों की बात है। घर आके करने लगे, उफ इतनी गर्मी। तो उनके दादा ने पूछा, क्या हुआ, क्यों पसीना पसीना, क्यों क्यों ऐसे कह रहे हो कि हम बेहाल आए हैं बर्थडे से। ओ दादाजी, उनके घर में तो एसी भी नहीं था। एसी नहीं था तो क्या हुआ? ओहो, ये वो अंकल हैं, ये वो दादाजी हैं जो मेरे बचपन के दोस्त थे। लेकिन जब वो जमाना था जब हमारे पास एसी नहीं होता था, इनके पास एसी होता था। लेकिन जब लाइट चली जाती थी, हम इनके घर पढ़ने के लिए एसी में जाते थे। जब लाइट चली जाती थी तब हम घबराते नहीं थे, हम कहते थे कोई बात नहीं, लाइट नहीं है, चलो छत पे जाके पढ़ते हैं। सो जरूरी नहीं है कि एसी होना सबके पास हो, सब बराबर है। किसी के पास कुछ सुविधा है, कुछ के पास कोई सुख है। सो हमें अपने जीवन को ऐसे लेना चाहिए, क्या? आइडेंटिफाई, recognize and accept equality in life। ये भी एक हमारा नेक्स्ट एथिक्स इन भगवत गीता है। सो लेट इट बी एनी सर्कमस्टांसेस, हमें फीलिंग ऑफ सफरिंग होएगी, जॉय की फीलिंग होएगी, बट you realize bodies are different but the soul is one, and that is the ultimate truth। नेक्स्ट एथिक्स अगर हम खोजने जाते हैं तो हमारा है डिजायर्स विल कम टू द माइंड एंड गो, आएंगी जाएंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे भी हुआ था, आज मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, अब मैं ये करूंगी, अब मैं वो करूंगी। लेकिन उससे अशांति होने लग गई थी मुझे, जब मैंने कहा बस मेरे को इसी में राइज करना है जो पोस्ट मुझे मिली है। सो उसके बाद एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर प्रोन टू गेट डिजायर्स, आएंगी जाएंगी, मेरे पास ये हो, बट लेसन्स इन गीता एडवाइस यू टू वॉच एंड एंजॉय द शो। जो मिला है उसको तो एंजॉय कर लो। और जब मैं कुर्सी पे बैठी, जिस सेक्शन में मैं काम करती थी, तो मैंने कहा सर मेरी पोस्टिंग, सुप्रिया आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा जब मुझे मेरे को डिपार्टमेंट ने कहा मैडम कुछ नहीं करना, आप वहीं बैठे रहो, बाकी की कुर्सियां सामने लग जाएंगी, नाउ यू आर द बॉस। आप इमेजिन करिए कि मेरा उस वक्त कैसा फीलिंग रही होगी। और मैंने अपने आप को क्या कहा, शुक्रिया, शुक्रिया किया ईश्वर का। इसीलिए हमें एक बात सीखी गीता से, ग्रैटिट्यूड। गेटिंग caught in the chains of desires will always end in harm, stress and result in rebirth। तो हमें इन चीजों से बचना है, तो इसलिए डिजायर्स पे एक क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं, बैंडेड। हम बैंडेड लगा दें डिजायर्स पे कि हमें ए माइंड फुल ऑफ थॉट्स अबाउट मनी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। अगर आप केवल पैसे के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हम कभी भी मेडिटेशन के लिए कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अभी एक छोटा सा एक मैंने वीडियो देखा था, सुप्रिया, तो वो लेडी कहने लगी मैं बर्तन मांजने से बहुत दुखी हो गई हूँ। डिजायर्स, मैं मुझे बर्तन मांजने से मैं परेशान हो गई हूँ, मेरी पूरा जीवन घर के कामों में बीत गई है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने एक ऊपर से आवाज आती है, नहीं मांजने बर्तन, नहीं घर का काम करना। तो वो कहती है ओह ईश्वर मुझे बचपन वापस कर दे। उसने कहा बचपन चाहिए, ओके आ जाओ केमिस्ट्री, आ जाओ साइकोलॉजी, आ जाओ फिजिक्स, आ जाओ फॉर्मूले, आ जाओ ज्योमेट्री, आओ मैथमेटिक्स, आओ अब आप पढ़ोगी। ओह उस लेडी ने कहा नहीं नहीं मुझे बचपन नहीं चाहिए, मैं इसी जीवन में सुखी हूँ। डिजायर्स, इसका कभी अंत नहीं होने वाला। सो अगर आप ये बातें सोचेंगे कि मेरी एक के बाद एक ख्वाहिश मेरी पूरी होती जाए, तो आपको अपना एक काम माइंड चाहिए, और वो तभी होगा जब आप मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन आपको कंसंट्रेशन देगी और स्ट्रेंथ देगी। उसके बाद आपको ये देखना है व्हाट एवर हैपन्स इज ओनली गुड फॉर द फ्यूचर। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया, और जो भी हो रहा है एक अच्छे फ्यूचर के लिए हो रहा है। आज हम ऑनलाइन है ना, ये भी तो उसी से सीखा है हमने कि भाई कैसे कैसे समय आए और कैसे हमें इस तरह से। पहले किसी को पता ही नहीं होता था जूम क्या होता है, अब आप सबको पता है जूम है। मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो भी जूम पे पढ़ते हैं। तो बहुत कुछ हमने सीखा, जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छाई के लिए हो रहा है, फ्यूचर के लिए हो रहा है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, विक्ट्री और फेलियर जो भी होगा देखा जाएगा, बट हमें अपना काम करना है। अब दूसरी बात क्या है,
चेंज इज परमानेंट, हमेशा तब्दीलियां होती रहेंगी। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। दिस इज यूनिवर्सल लॉ। आज जो है कल नहीं होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिवर्सल लॉ। यू कैन आइदर बिकम ए बिलियनियर और यू कैन बिकम ए पॉपर इन ए सेकेंड। सुप्रिया, अभी आपने देखा कितना बड़ा सीरिया में भूकंप आया, लोग खड़े के खड़े रह गए, कुछ नहीं कर पाए। और जिस बच्चे ने बचना था वो रॉक्स के नीचे से भी उन्होंने उसको जब उठाया तो वो जीवित हंस रहा था। तो क्या हुआ? बिलियनर लोग थे, वो पॉपर हो गए। एक ही भूकंप के झटके से समाप्त हो गया सब कुछ। सो आपको ये ध्यान रखना है, चेंज इज परमानेंट बट दिस यूनिवर्सल लॉ, यू कैन आइदर बिकम, आप या तो बिलियनर हो जाएंगे या पॉपर हो जाएंगे। आपने देखा एक रिक्शे वाले की लॉटरी निकली थी, बिलियनर बन गया और एक पॉपर बन गया। हमारा सीरिया के रहने वाले एकदम से जीरो हो गए। अब हमें ये ध्यान देना है, भगवत गीता से क्या सीखा? एक एक्सप्लेनेशन मिली। जस्ट इमेजिन ए बिलियनियर हैड मोर वर्थ देन मनी। उसके पास इतना शेयर मनी हो गया, इतना कुछ हो गया, लेकिन उसको रात को नींद नहीं आती। आप क्या प्रेफर करोगे? एक वो गरीब आदमी जो अपने घर में चैन से सोता है बिना नींद की गोली खाए हुए, या ऐसा व्यक्ति जो कि पैसे गिनता है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, परेशानी में सोता है? तो हम सोचते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे वो जीवन नहीं चाहिए जिसमें मुझे रात को नींद की दवाई खानी पड़े। इन शॉर्ट, तो फिर क्या होगा? परमानेंस इज नेवर इन ह्यूमन लाइफ। हमारी मदर अर्थ भी रोटेट करती है, सूर्य भी घूमता है, पृथ्वी भी घूमती है, कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं है। चंद्रमा भी आपने देखा कि वो बड़ा छोटा हो रहा है। तो आप, ऑल रिलीजन्स कंसीडर प्राइड ए साइन ऑफ इमेच्योरिटी। जब हम कहते हैं मुझे अपने पे घमंड है, immaturity, a sign of immaturity. So आप हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट एथिक्स इन गीता, भगवत गीता, क्या? फियर फैक्टर इज डिसेबिलिटी। फियर फैक्टर, कभी भी नहीं डरना है हमें। आप स्टूडेंट्स हो, आपके एग्जाम्स हैं। आज मेरी प्रेजेंटेशन थी, मैं आपके सामने कभी ना आ पाती यदि मैं डर के पीछे बैठे रहती। अरे यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन गीता पे, भगवत गीता पे कैसे होगा? ये तो बहुत बड़े लेसन है, इसमें कैसे मैं श्लोक याद करूंगी, कैसे मैं बात करूंगी? फियर। तो आप हमेशा, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम रांची, आप ये याद रखिए एक बात, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। और ये बात याद रखिए, मन जीते जग जीत। जिसने अपने आप को डर से बचा लिया, अपने आप को डिसेबिलिटी से बचा लेंगे। आप, इसके लिए मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहूंगी कि एक व्यक्ति के पास एक जार था, बरनी थी। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको फियर फैक्टर से दूर रहना है। आपको ये याद रखना है, हम तो यहाँ खाली हाथ आए थे, जब हम दुनिया में आए थे खाली हाथ वापस जाएंगे। किसी ने, सिकंदर जब युद्ध जीत के आ रहा था, कितने लोगों को मार के आ रहा था, तो रास्ते में उसको साधु महात्मा जी मिले और साधु जी ने बोला, सिकंदर, तुम सिकंदर महान हो। और उसकी जो तलवार थी खून से रंगी हुई थी। और उसने कहा, हाँ हाँ, क्या कहना है, कितनी हिम्मत है तुम मुझे बात करने की और मुझसे रोकने की? कहता, साधु जी, सिकंदर, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने 3/4 दुनिया तुमने जीत ली और कितने लोगों को मार के तुम इस पृथ्वी के मालिक बन गए हो, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? उसने कहा, सिकंदर ने, हाँ हाँ बोलो बाबा, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हें मुझसे एक प्रश्न करने की, बताइए। कहते, एक सुई ले जाओ, मैं तुम्हें अगले जन्म में मिलूंगा, ये सुई मुझे वहां दे देना। सिकंदर हैरान हो गया, सुई? बाबा जी, मैं आपको वहां मिलूंगा, वहां दूंगा। और कहते हैं उस दिन उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब मैं सुई तक बाहर अगले वहां नहीं ले जा सकता अगले जन्म में, तो मैं ये दुनिया को जो मार काट करके पूरी दुनिया को हासिल करना चाहता हूँ, ये मैं कर क्या रहा हूँ? तो कहते हैं उसी दिन से सिकंदर महान कहलाया। उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैंने दुनिया की मार काट बंद कर दी है, और जब हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं तो फिर खाली हाथ हमें वापस जाना है। सिर्फ हमें ये बात है कि जो हम हैं वो है, आपको ये अच्छे कर्म तो करने ही है, डर रहना है। ये नहीं मैं कह रही कि भय होके काम करने आपने। अब आता है लस्ट, एंगर, ये ग्रीड,
ये हमें क्या करते हैं पता है आपको? ये हमें सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। मैं एक उदाहरण देती हूँ, आपका मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक सज्जन थे, उनके पास एक बरनी थी कांच की, और वो उन्होंने उसमें 2 गेंद डाल दी। स्टूडेंट को बोला इस बरनी में 2 गेंद डालिए। उन्होंने पूछा बच्चों ये जब बरनी भर गई? हाँ सर, उसमें 2 ही गेंद आती हैं, भर गई। उन्होंने कहा कि बरनी भर गई, अच्छा ठीक है, ये थोड़े कंकर और डालो, डाल दो। उन्होंने कहा सर डाल दिए। पूछा बरनी भर गई? हाँ भर गई। ओके, तो अब ऐसा करते हैं, थोड़ी रेत डाल देते हैं। बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने उसमें रेत डाली, रेत भी बरनी में समा गई, क्योंकि पत्थरों के बीच में जो जगह थी उसमें से खिसक खिसक के रेत भी नीचे चली गई। उन्होंने कहा बरनी भर गई? उन्होंने कहा हाँ भर गई। बच्चों ने कहा हाँ भर गई। गुरुजी ने उसमें कहा अब इसमें 2 कप चाय है, इसमें डालो। उन्होंने चाय डाली, और वो जो रेत थी, आप मुझे बताओगे क्या हुआ होगा? सुप्रिया, क्या हुआ होगा? आपकी आवाज बंद है। सोख हो गया होगा। सोख हो गया। तो आपने देखा, गुरुजी कहते हैं देखो बच्चों, ये जो बरनी है ये आपका जीवन है, ये जो गेंद है 2 डाले थे, ये आपका परिवार है, जो पत्थर डाले थे बीच में, ये आपकी कार, आपका घर, आपका आपका जो पार्क है, आपके घर का सामान, फ्रिज है, वो सब समा गए बीच में। अब रेत थी ना, जो रेत फिसल के अंदर गई है, जो वो अब मैंने जब इसमें, तो कहते हैं गुरुजी आपने चाय क्यों डाली? वो बात समझ में नहीं आई है। तो जो उन्होंने कहा रेत थी ना, ये हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं, वो सब समा जाती है, लेकिन चाय का महत्व समझ नहीं आया गुरुजी, जो आपने कहा चाय भी बीच में समा गई। चाय का मतलब है कि हमारे पास कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए, जो हमारे पास बैठ के कप चाय पीने लायक हो, हमारे दुख सुख की बात कर सके, बट उसमें कभी भी हमें लस्ट, एंगर और इन चीजों की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों पे ये ग्रीड रहता है, ग्रीड, डिजायर, माइंड, ये सारे जो चीजें हैं हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब नींद ही नहीं आएगी रात को, हमें सिर्फ पैसे इकट्ठे करने की पड़ी होगी, होड़ लगी होगी, तो फिर क्या होगा? ए मैन मेक्स हिज लाइफ बेस्ड ऑन हिज बिलीफ। जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर मैं भी उस दिन बैठ जाती यूपीएससी एग्जाम में, नहीं नहीं मुझे सब रोक रहे, नहीं कर सकती मैं, तो मैं भी वैसे ही बन जाती, मैं आज आपके सामने ना आ पाती। आप मनी, एंगर, ये सारी चीजों से हटके मनुष्य को क्या होता है, हमारा नया एथिक्स है इसमें, गीता में, मैन इज मेड बाय हिज बिलीव, एज ही बिलीव्स सो ही इज। जैसा हम चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। हमें अपनी लाइफ को खुद डिफाइन करना है। अपने जो हमारे पुराने जो टेक्स्ट है, जिसमें कि ह्यूमन बर्थ की बात की जाती है, टू एवरी रिलीजन सेक्रेट टेक्स्ट शो, क्या शो करते हैं? द डिवाइन पाथ। ये हमें कहाँ से मिला? भगवत गीता से। क्या? द लेसन इन भगवत गीता गिव्स अस द प्रैक्टिकल इंप्रेशंस ऑफ ह्यूमन प्रिंसिपल्स। लेट अस रीड एंड मेक अवर लाइफ मीनिंगफुल। आप, यही तो सिखाता है कि मीनिंगफुल लाइफ कैसे जीनी है। आप, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। हमारे मनुष्य में 3 तरह के गुण होते हैं। पहला है तप, तप तमस, सत्व और रजस। किसी को किसी से छुपा नहीं है, तमस में गुस्सा, क्रोध, सत्व में क्या होता है, इट इज काम माइंड होता है, और जो रजस होता है, दैट इट इज इट इज अ वेरी वेरी हॉट माइंड और हाइड्स अवेयरनेस। वो अवेयरनेस नहीं लेना चाहता। और जो तमस है और रजस है, ये सत्वा जो है, ये हमेशा अवेयरनेस को एक्सेप्ट करता है। तो प्लीज मेरी आप लोगों से विनती है कि जो हमारी गीता में बताया है, सात्विक गुणों को आपने ग्रहण करना है, सात्विक गुणों को आपने अपने जीवन में बिठाना है। और हियर एवरीथिंग इज सात्विक। वो जितनी भी सात्विक चीजें होंगी वो हमें डिमिस्टिफाई करेंगी। हमें जो बाहर की जितनी भी चीजों की जो हमारे धुंध है, जो हमें नकली जीवन की तरफ ले जाती हैं, उससे हमें बचाती हैं। तो सात्विक चीजों को अपने जीवन में आप लोगों ने लाना है। फिर क्या करें? What can we take to be the ethical teachings of Gita?
गीता टीचिंग हैज ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, हमारे ऊपर उनका कितना असर है ये आपको देखना है। क्या ये हमें डिवाइन सॉन्ग है, ये हमारा एक Gita, it then he can be freed from all miserable and anxieties of life, अगर हम गीता की तरफ एथिकल वैल्यूज को पहचानने में मदद करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो एथिक्स आपने सुने, ये आपको गुड फ्यूचर की तरफ ले जाते हैं? दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज राइट और रॉन्ग? ये हमारे जो एथिक्स है हमारे लिए राइट है या कि हमें मुश्किल में डाल रहे हैं? Exactly, ma'am. These are Yes. right ethics दूसरी given in बात, Bhagavad Gita. दूसरी बात, ये क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। Mhm. They are easy to know, are easy to understand, easy to follow, right? So हमें ये ध्यान रखना है कि यदि अगर आपको एक सात्विक जीवन जीना है तो फिर आपको इसका ही एक पल्ला पकड़ना पड़ेगा, ये जानने के लिए लीव द मास्टर। आप जो सिकंदर की जो मैंने आपको बात बताई थी, लस्ट की बात बताई थी, लस्ट थी उसको कि मैं पृथ्वी का राजा बन जाऊं। नोएडा में एक जगह है जिसका नाम है निठारी। निठारी कांड आप सबने सुना होगा कि वहां जो रहने वाला व्यक्ति था उसको इतनी लस्ट हो गई थी, किसकी? लड़कियों को बुला के उसको चॉकलेट दे के उन्होंने मारना शुरू किया और उन्हीं का ही मांस खाना शुरू किया। व्हाट इज दिस? लस्ट, एंगर, सेक्स, ये सारे जो भावनाएं आई थी कहाँ ले गई? अब जेल में। उसका अंत खराब हुआ। उसका जो अंत है उसको फांसी की सजा तक के लिए जो है निर्देश हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये चीजों से दूर रहना है। ये जो हमारे सामने जो हमारे जीवन में इस तरह के कांड जो हमें सुनाई देते हैं, ये हमें शिक्षा का एक माध्यम है। हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी अपनी सोच तो है। सुप्रिया, मैं मंदिर में जाती हूँ, आप मंदिर में जाती हो, फूल लेके जब मंदिर में जाने लगते हैं तो कोई हमसे पूछता है टोकरी में क्या है? मैंने कहा भगवान जी को चढ़ाने के लिए फूल है, माला है, प्रसाद है और इसमें मैंने भगवान जी को जल चढ़ाना है। जैसे ही मैं माथा टेक के आपके साथ बाहर आई, हम दोनों को किसी ने रोका, सुप्रिया, सचदेवा मैम, आपकी टोकरी में क्या है? मैंने कहा सुप्रिया, ये तो प्रसाद है, प्रसाद है। अरे अभी तो फूल थे, ये प्रसाद कैसे बन गए? ओहो, जब हम माथा टेक के आए तो वही फूल प्रसाद बन गए। तो क्या हुआ? तो वो जो हमारी सोच थी, हमारा एटीट्यूड था सुप्रिया, कि मंदिर में फूल गए थे लेकिन प्रसाद बाहर आया। तो मैं इसके साथ ही विदा लेना चाहूंगी और आप लोगों से प्रार्थना करूंगी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि भगवत गीता की जो एथिक्स है उसको अपने जीवन में ढालें। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रश्न, कि मुझे आपके प्रश्नों से मैं उसका उत्तर देना चाहूंगी। मैं पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आप इनके स्पीकर ऑन कर दीजिए सुप्रिया। Ma'am, they can write in the चैट box, question answer box. Yes, ma'am. ओके ओके Student, all the audience, students, I request you, if you have any question, you can ask to the जी ma'am. जी, You can write in this box. या मैं सुन सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। पार्टिसिपेंट, कैन यू हियर मी? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपके प्रश्नों का वेट कर रही हूँ ताकि मैं जवाब दे सकूं। Ma'am, there are some questions here. I can Yes. read you. प्लीज आप पढ़िए। Yes. Malika. मल्लिका, हेलो। Malika has written, as death is the eternal truth, and as rightly said by you, you cannot take anything with us. Should this fact hinder us from achieving our goals? यू सी, यस, योर क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है फिजिकल थिंग्स और एक है मटेरियलिस्ट थिंग्स हैं, और एक है दूसरी हमारा ज्ञान। जो आपकी फिजिकल थिंग्स है, जैसे सिकंदर सुई नहीं ले जा सकता, वो नहीं ले जा सकता, लेकिन आपका ज्ञान साथ में रहे। ये याद रखिए, ये जो आपकी शिक्षा है, आपका ज्ञान है, ये साथ जाएगा। Another question over here, Mehul. Mehul asked, मेहुल, हाउ आर यू मेहुल? यस ma'am, in today's world, Bhagavad Gita is still relevant? यस इट इज। आपने खोल के देखी ही नहीं?
मुझे तो लगता भी नहीं है कि आपने ये ग्रंथ को कभी देखा या खरीदा या पढ़ा भी है। ये मैं आपको बता दूं, गोरखपुर प्रेस वाले इसको फ्री भी देते हैं, और कभी मुझे मौका मिला तो मैं सुप्रिया को कुछ कॉपियां दे के जाऊंगी ताकि सबको बांट सके। ये आज भी रेलेवेंट है, आप विश्वास रखें। सिर्फ बात मैंने अभी बताई थी अपनी सोच की है, हम सोचते कैसा है। मैंने कहा था ना मेरे हाथ में पंख है और ये हाथ में डायरी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं हाथ कहती ओ भारी है, ओ ये हल्का है, ये हमारे सोच की बात है। एक बार उसमें घुस के देखिए, आप इसमें होली के रंगों जैसे रंगे जाएंगे, एक बार जाके देखिए। Another question Mandeep Nayak asked, हाय मनदीप, uh, कैसे हो बच्चे? how क्या to do something without thinking of the result. That means selfless मैंने action he is किया, मैंने talking अपना about. मैंने अपना बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मुझे बहुत लोगों ने कहा था, जब मैं सीबीआई में आई ना, तो सबने कहा अरे सीबीआई जैसी संस्था में मैडम का क्या काम है, यहाँ तो रात को 11 बज जाएंगे, ये कैसे घर संभालेगी। लेकिन मजे की बात बताऊं, मेरे घर वालों ने मुझे साथ दिया, क्योंकि जब आप रिजल्ट की परवाह नहीं करते, हमारे घर वाले, जब मैं 11 बजे घर आती थी और सब खड़े होते थे, मम्मी आएगी तो खाना खाएंगे। और ऑफिस में भी जब पता चल गया अरे ये तो डरने वाली नहीं है, तो एक बार डायरेक्टर सीबीआई ने कहा ये कौन है मैडम, उन्होंने कहा ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, तो मेरा नाम ही वहां पड़ गया। तो आपको ये अपना आत्मविश्वास हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। बट एक बात है, आपको चट्टान बनना पड़ेगा, जैसे मैं बनी थी और आज भी हूँ। Okay. Next, this is something different. Kija Smith. Wow. कीजा, कैसे I हो don't कीजा? know. This is name or something else. कोई बात नहीं। And the person said, kindly help and summary for some of us who don't understand Hindi. Yes, I think they want यस, a summary of तो ऐसे करते today's हैं, talk. मैं सुप्रिया को कुछ जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स मैं सेंड कर दूंगी, आप प्लीज I'll सुप्रिया को summarize. दे At देना। the end, I'll summarize for 5 minutes. तो अभी क्या कर सकते हैं, मैं जो पॉइंट्स है ना, मैं फटाफट से उनको बता देती हूँ इंग्लिश में कि वो क्या पॉइंट्स हैं। विल यू लाइक टू हियर? क्या आप सुनना चाहोगी वो जो पॉइंट्स हैं? यस, यस, आई कैन एक्सप्लेन यू। हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इन इंग्लिश आई विल एक्सप्लेन नाउ, whatever happens with the permission of the nature, nobody can stop that. I told you the example of earthquake, I gave you the example of corona. The second ethics was in English was, you have the right to do your work, nobody will stop you. And then if you are doing your work, do it with your full dignity, and don't wait for the result. Do it with your what? It is your right. Don't wait for the result, what will happen. As I gave my example of UPSC exam, I just went in, right? And another is, change is eternal, it will happen, that will come, but will come. Like I gave the example of sun, moon, and the movement of the earth, right? And the next ethic I gave was that when we came empty handed, we have to go empty handed. Like I gave the example of Alexander the Great. The next ethic I explained was that we have to keep ourselves away from anger, lust, and negative feelings. What they are? In Hindi it is said, they are narak ke dwar. They are the doors of what? What is the opposite of heaven? Can you tell me? Yes? It is the opposite of heaven. What's that? Supriya? What Hello, is the yes? What is the opposite of heaven? hello. So मैम ये जो स्टूडेंट्स है ना इनके नाम yeah, I can't hear you. And another ethics is that what we think we become. If we think we have to become a pickpocketer, we'll become that. If I think I have to become a priest, I will become that. If I think I have to become a scientist, I will become that. It is only our thoughts what we become. And
And we only have to have is what? We should have faith in ourselves. And for when we have faith in ourselves, our situation is like what? We are like a candle amidst storm. It won't move, it won't dry out, it won't get extinguished. The only thing is, we only have to have strong faith. Nobody can move you. The last is that the last one is the human being is friend and foe of himself or self. If you do good things for yourself, you get name and fame. Like I gave the example of Mr. Kalam. And if you Ma'am, don't become, yeah. another question is here. Ma'am, it is mentioned in Gita that we need a guru to connect with God. What Yes. if we don't find one because even teachers today don't follow such ethics? Yeah. Have you heard the story of Eklavya? There was no guru for him. Nobody was ready to become his guru. What he did? What he did? He made a murti of that guru, and then he started praying him, and then did the practice before that imaginary guru. And then what he did? What he became? Eklavya. Even today, after centuries of years, hundreds of years, we still remember his Eklavya ki Guru Bhakti. And then what he said, अगर तुम गुरु हो, तुम अगर मेरे शिष्य हो तो अपना अंगूठा काट के दे दो. ठीक है? You remember this, Supriya, this story? Yes, Yes. yes, ma'am. Yes, ma'am. This is how you can have the guru. Okay, how can we avoid distraction? Sujit Mirdha. सुजीत, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, बट मैं इंग्लिश में जवाब देना चाहूंगी क्योंकि तुम्हारा प्रश्न इंग्लिश में. डिस्ट्रैक्शन. यस, मैंने अभी बताया. अगर आपको, इफ यू हैव गॉट दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर, you are away from all this negativities in the world around, and then you know what will happen? Your condition will like a flame in the candle, flame of the candle, which won't be distinguished, which cannot be extinguished even with the storm. The only thing is, you have to become your friend. Either the time is the same, it is for you to spend the way you want it, either gossiping, either reading, or the whatever work you have been given. You see, I was sitting in the morning, I said ये करना है, वो करना है, नहीं नहीं अभी मुझे सोना है, 10 मिनट के बाद उठती. But you know, when I got up, in 10 minutes I did hundreds of the household things. And if I was sleeping, oh, that was a very bad scene for me. So distraction, it is only within you. आपके अंदर है वो सब कुछ. समय सबको बराबर दिया भगवान ने. God has given the same time for you. It's only for you how to utilize it. Am I right? Okay, now the question has repetition. I think ma'am has clarified every question. How to manage stress, ma'am? Oh, ये तो बहुत अच्छा सवाल है. स्ट्रेस, बहुत अच्छा सवाल है. मैंने पिछले एग्जाम में एक क्या किया था, सुप्रिया. It is the question is in English or in Hindi? How to manage stress, ma'am? In English, Okay. ma'am. In English, I will give you a very good And example. another question also related, how to focus properly on our goal according to Bhagavad Gita. So I will tell you, the thing is, for the first question first, okay? I went to a seminar, and the seminar was on police officers, और उन्होंने कहा stress बहुत होता है, a lot of stress. Okay, I said, okay. I gave them thread with knots to all the police officers. You see, the question is for the person who's asking me about the how to release stress. Okay, I gave that knotted thread to 10 persons. Out of the 10, 2 said, oh, sorry, ma'am, I can't do it. And he kept the thread side mein rakh diya. Out of the remaining 8, 3 said, madam, what kind of work you have given? This is not fair. You are testing our knowledge or what? So he started questioning the stress instead of solving the, and
using the energy within him or her to solve the issue, he started asking me questions. He's wasting the time. Now the remaining three, Supriya, you know what they did? They started opening the entangles, and out of the three, two could open it, and the last one was left. And you know what he did? He went to the other two. Please help me. I am very near the solution. If you are in stress, please reach to somebody, talk to somebody, and then first was attempt yourself, face it, and the second is, if you are still in trouble, talk to some good friend. Like I have a friend, Supriya. You talk to your friends, and then most of the problems will be solved if it is related to sex. Hope I'm clear. I made it clear. I think all audience and students are satisfied with the answer given by ma'am. So that's it, ma'am. Thank you so much for all these all this wonderful session. थैंक यू सो मच। We मैं all सारे are really बच्चों का, मैं जो आज 70 के करीब बच्चे आए थे, मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि अपने अंदर आप एक सात्विक गुणों का निवास करेंगे और जो इसका आध्यात्मिक ज्ञान है गीता का, उसके अंदर अपने उतारोगे। मैं आपका, मैनेजमेंट का, वीसी सर का और आपके जितने भी सीनियर अधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में मुझे आगे लाए या मुझे इसका अपॉर्चुनिटी दी, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Thank you all audience, all faculty members, Chancellor sir, and patron and chairman sir also. However, they are not here, but I heartily thankful to all of them. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. We will listen you again, ma'am. We will be waiting to listen you again. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.